الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طول عرض میں پھیلے ریڈ نیوز کے اس وسیع نیٹ ورک کے ذریعے جہاں جہاں بھی ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ کے میزبان سید عامر ذاکر اور صوفیہ ملک کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم 16ویں روزے کی سحری کو اختیار کریں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ۔ آج ہماری ریڈ نیوز کی ٹیم نے یہ ضروری سمجھا کہ زکوٰۃ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہے، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں کیا کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ شعیب نجم القادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور تلاوت کلام پاک رحمان کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد غلام مصطفیٰ صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محمد عمران نقیبی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو میں حافظ محمد غلام مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک رحمان سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے، خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے،
اور میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محمد عمران نقیبی صاحب سے کہ وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے نہایت ہی شکر گزار ہوں ریڈ نیوز والوں کا، جنہوں نے اس پروگرام میں مجھے حاضری پڑھنے کا موقع عطا کیا، اور میں حضرت حفیظ طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، جمالیات کا شہکار مسجد نبوی، جمالیات کا شہکار مسجد نبوی، جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، جہاں گناہگار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی، دل و نظر کو بیک وقت نور نور کرے، دل و نظر کو بیک وقت نور نور
مسجد نبوی فروغ مسجد نبوی تجلیات کا گلزار مسجد نبوی اور مقدہ دلوں مسجد نبوی ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی تجلیات کا گلزار مسجد نبوی جمالیات کا شہکار مسجد نبوی تجلیات کا گلزار مسجد ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز سے مدینہ پاک کی شان کے حوالے سے کلام عمران نقیبی صاحب نے پیش کیا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, انشاءاللہ زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جھکا لو رب کے آگے سر, مہینہ رحمتوں کا ہے. خدا سے مانگ لو کھل کر, مہینہ رحمتوں کا ہے. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر, اور میں ہوں صوفیہ ملک. اس نے سحر آئی رحمت ذات لائی, اس نے سحر آئی رحمت ذات لائی. چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی. کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی. خدا کی نعمتیں اتری, خدا کی برکتیں اتری. اسے رمضان کہتے ہیں,
تمام رمضان المبارک سے انتہائے رمضان تک۔ خدا سب روزے داروں پر خزانے کھول دیتا ہے، سحر کو اٹھنے والوں پر قدم موسم کے ہوتا ہے، کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سحر تو دیکھنا مت بھولیے گا ریڈ نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن حسن سحر، صرف ریڈ نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی 16ویں سحری آج ہم اختیار کریں گے، اور جو پروگرام ہے خصوصی ہماری جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس نے سحر، اس میں ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے ہم آج بات کریں گے زکوٰۃ کی، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں اگر کہا جائے تو رمضان المبارک میں کچھ لوگ اسے کچھ زیادہ ہی دیتے ہیں اور مخصوص ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ بالکل ہر بندے کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی ایک نیکی کرنے کا جو صلہ ہے، وہ جو اجر ہے وہ 70 سے 700 گنا تک زیادہ اس کا جو ثواب ملتا ہے۔ تو علامہ شعیب نجم القادری صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ کے اصل معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی سید المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ میں آج ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلے بھی آپ کے پروگرام کافی پچھلے رمضان میں بھی دیکھے، اور یہ جو آپ جن ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کی عوام کو، مسلمانوں کو اس باتوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ لوگ زکوٰۃ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا، زکوٰۃ کے بے شمار معنی ہیں۔ لفظ زکوٰۃ ذاکا وا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پاک ہونا، یعنی جب بندہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کے بعد صاحب استطاعت ہوتا ہے، تو پھر اسلام غریبوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ اسلام پھر کہتا ہے کہ تم امیر ہو، غریبوں میں سے مال نکال۔ جب کوئی مال نکالتا ہے تو حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے، یعنی میل کچیل نکل جاتی ہے دولت کی۔ پھر ایک اس کی اگر آپ کہیں کہ ڈیفینیشن میں ایک جواب پہ ایک ایسا ہمیں اعتماد ہو یا اس کا ایک دعویٰ ہے، دلیل ہونی چاہیے، اس پہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، مگر ایسا پاک ہوتا ہے کہ چور ڈاکو کوئی نقصان اسے پہنچتا نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر کئی لوگوں کا مال و دولت میں لوٹ ماٹ ہوتی ہے تو وہ فقط اس لیے ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کیونکہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مالک اس کے دولت کا فرشتوں کو پہرے دار کھڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا جب تک یہ مال دیتا رہے گا تم مال میں اضافہ بھی کرتے رہنا، اس کی رکھوالی فرشتے کرتے رہنا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ رہی بات زکوٰۃ، ہم نے عامر ہاشمی صاحب، آپ تو سید زادے ہیں، جانتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ تو سنت ہے نہ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہا نماز بھی پڑھ زکوٰۃ بھی دے۔ اگر نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
व ईताई ज़काती वल हज्जी व सौमी रमज़ान, फरमाया हज भी करो, ज़कात भी दो, रोज़े भी रखो, तुम्हारे रोज़े तब कबूल होंगे जब तुम पाक माल में से ज़कात अदा करोगे। सुभान अल्लाह। ये है ज़कात का हुक्म। आज हम लोग ज़कात को हल्का समझते हैं, ज़कात देते नहीं हैं। अगर ज़कात 1 लाख रुपया है, 2.5% 2500 रुपया बनती है। अगर 84,000 रुपया है, अब तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है जिसके पास 84,000 रुपया हो वो क्या करे, उसमें से ज़कात निकाले। जिस तरह 46,000 का पिछले साल था, उसमें 1200 ज़कात बनती थी। अब इसी को आप बढ़ा लें, 84,000 में भी 2.5% निकालें। किन लोगों पर फर्ज है, किन अफराद को ज़कात देनी चाहिए? ज़कात सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, गुरबा हैं, मस्कीन हैं, यतीम है, जिनका कोई सहारा नहीं। मेरी बहना, ये जो आपने सवाल किया ना, ये इस्लाम में ज़कात इसलिए फ़र्ज की गई थी, अमीर तो ईद करता था, गरीब रह जाता था। इस्लाम ने ज़कात को कहा कि तुम फतराना भी निकालो, ज़कात भी निकालो। और ये ज़कात के बारे में बड़ा रवाज है कि रमज़ान में ही देनी है, नहीं। हदीस मुबारका है, शुरू साल से लेके आखिर साल तक अगर रमज़ान में देना चाहते हो तो पहले अशरे में अदा करो, ताकि गरीब का बच्चा ईद में तेरे साथ शामिल हो जाए। अब तो कोई इल्ला माशाल्लाह ज़कात निकालता है। पहले तो ये होता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐसा करो, मदीने के अंदर देखो कोई ज़कात लेने वाला तो नहीं रह गया, कहीं क़यामत के दिन हज़रत उमर से मुस्तफ़ा ये ना पूछें कि मदीने का गरीब रह गया था। आज जाओ, जब देखा तो सारी लाइनें लगी हैं। आपने फरमाया सहाबी आया, कहा जी ज़कात देने वाले खड़े हैं, लेने वाला एक भी नजर नहीं आ रहा। ये है कि ज़कात का हुक्म। ये ज़कात एक माल को पाक करता है। कोई नुकसान हो तो वो भी तो हम बर्दाश्त करते हैं। बहन भाइयों में से सकी बेटी को, बहना को, हमशीरा को, सके चाचू को, मामू को, रहमी रिश्ते जो उनसे हैं, सबसे पहले मेरा सक्का भाई है, उस पर ज़कात नहीं मैं दे सकता, उसे मैं फतराना नहीं दे सकता। मेरा बेटा है, मैं उसे ज़कात नहीं दे सकता। मैं अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकता। सखावत कर सकता हूँ, उन्हें ज़कात नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। ठीक है, ये रिश्तेदारों में पहले देखें। और रही बात, आपने बहुत प्यारा सवाल किया, इसमें अंदर और थोड़ा सा मैं ऐड एक चीज़ करना चाहता हूँ। लोग ना एक ही हैं, अगर ताहिर भाई हैं मैं उनको अब्दुल्ला भाई को सारी ज़कात दे रहा हूँ, नहीं, ये भी शरई हुक्म नहीं है। अगर मेरे ऊपर 1 लाख रुपए ज़कात बनती है तो उस पर मैं थोड़ी थोड़ी करके सब रिश्तेदारों को, सभी को साथ लेके चलना है। ज़कात एक को काउंट करके एक बंदे को नहीं बंदा दे सकता, ज़कात सभी को देंगे ताकि ईद में कोई गरीब भी रह ना जाए, वो भी हमारे साथ खुशी में शामिल हो जाए। जी, बड़े खूबसूरत अंदाज से अल्लामा साहब ने ज़कात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है कि अपने माल को पाक करने का नाम ज़कात है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर, और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि उसने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी, इसे रमजान कहते हैं।
ملا ہے یہ بخشش کا شفاعت کا لبوں پر ذکر تو رب کا سجا حسن سحر آئی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان تک خدا سب روزے داروں پر خزانے کھول دیتا ہے سحر کو اٹھنے والوں پر قدم محسن کے ہوتا ہے کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سحر تو دیکھنا مت بھولیے گا ریڈ نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن حسن سحر صرف ریڈ نیوز پر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی جو آج 16ویں سحری ہے اس کی خصوصی ٹرانسمیشن اور ہم بات چیت جو کر رہے ہیں آج وہ ہے زکوٰۃ پہ زکوٰۃ کی بہت اچھا ان کا انداز بیان ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جائیں اپنے جو ہمارے ناز شریف ہے عمران نقیبی ہمارے ساتھ ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پروگرام کا حصہ بنائیں بیکار
बात एक गल नबी दे सारे एक गल नबी दे सारे वफादार जान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सरकार जान दे दे नौकर दहाल की सरकार जान दे दे मेरा शौक नात दे विच जिक्र अली भी होवे ओ मेरा शौक नात दे विच जिक्र अली भी होवे मेरा शौक नात दे विच जिक्र अली भी होवे मेरा शौक नात दे विच जिक्र अली भी होवे मेरे शौक नू है मेरे शौक नू है मेरे सब यार जान दे दे नौकर दहाल की सरकार जान दे दे गम की सलाम गई दे गमखार जान दे दे नौकर दहाल की सरकार जान दे दे आका दे प्यार दी गल कर दे दे बस फरोखी आका दे प्यार दी गल कर दे दे बस फरोखी आका दे प्यार दी गल कर दे दे बस फरोखी आका दे प्यार दी गल कर दे दे बस फरोखी जेड़े लोग चंगी गल दा जेड़े लोग चंगी गल दा ने यार जान दे नौकर दहाल की सरकार जान दे माशाअल्लाह इस तरह गई दे गमखार जान दे दे नौकर दहाल की सरकार जान दे दे माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मोहम्मद इमरान टीवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अजीब इज़्ज़त पेश कर रहे थे। अल्लामा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, ज़कात के ऊपर गुफ्तगू जारी और सारी थी। तो अल्लामा साहब ज़कात के बारे में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग ज़कात अदा करते वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर तशहीर करने की कोशिश करते हैं, तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनवाते हैं, तो उनके लिए शरई तौर पर क्या? लेकिन बेशक ऐसे भी सब लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मेरी नज़र में एक इंसान है हमारे मतलब जानने वाले तो नहीं है लेकिन उनमें ये चीज़ देखी तो उनसे बहुत ज़्यादा हाजी बिशारत साहब बिल्कुल उनकी बात में करने लगी थी। वो भी हर साल तकरीबन 500 से 1000 लोगों में राशन तकसीम करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ना कोई तस्वीर बनाई है ना किसी किस्म की तशहीर की है। लेकिन ये हमें पता चला है कि वो इस तरह करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने तशहीर नहीं की इस चीज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो बहना ने और शाहजी हुजूर ने बात की हाजी बशारत साहब के हवाले से, इसी से मुझे एक हदीस भी याद आ गई, इसी फिलबदी जुमला भी एक याद आ गया। ये ज़कात नहीं है मेरा भाई, इसे ज़कात नहीं कहेंगे, इसे किसी को जलील करना कहेंगे, किसी की ज़ातियात को उतरने की बात है। अगर गरीब की बेटी तेरी चौखट पे आ गई है, तुम्हें अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं था कि 7.5 तोले सोने का मालिक है, साल गुजर गया है, 52 तोले चांदी का मालिक है, तू अगर इतना साहिब इस्तात है, किसी का कर्ज नहीं देना, तो फिर गरीबों का ख्याल कर। आप राशन दे सकते हैं, हाजी बिशारत साहब अच्छा कर रहे हैं, राशन दे सकते हैं, किसी को कपड़े लेके दे सकते हैं, किसी को खाने के लिए कुछ चीज़ दे सकते हैं आप, ताकि वो उनका गरीब का बच्चा इफ्तारी कर ले, तेरी ज़कात भी अदा हो जाए और गरीब का बेटा पेट भर के खाना भी खा ले। लेकिन ये जो पिक खींचना है, पिक्के बनाना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की जाती है, लोगों को दिखाया जाता है मैं बड़ा मालदार हूँ। हाजी बशारत साहब ये आपको मुबारक हो अगर आप पिक वगैरह इस तरह का काम नहीं करते। मेरे नबी ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा आज गुलामों को बता दे कि करीब मिनल जन्ना, सखी जन्नत के करीब होगा, और बाइदुम मिनल जन्ना, वो जो बखील बंदा है वो बखीलुम दूर होगा, जन्नत के दूर होगा। मगर पता चला हजूर ने फरमाया जो बंदा ज़कात फर्ज होने के बावजूद ज़कात नहीं देता, अगर जो देता है बनावट करता है, सरकार ने फरमाया ज़कात का, नमाज का, रोज़े का
क़यामुल लैल का अजर अल्लाह देगा। जब तू अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए बात आ गई तो फिर अहले बैत का दरवाजे की दस्तक देता हो। सूरत ताहर का तर्जमा पढ़े देखने वाले नाज़रीन, सारी बात मौलवी पे ना छोड़ा करें, आप भी कुरान का मुताला किया करें। सूरत ताहर का तर्जमा पढ़ें आप, उसमें लिखा है कि मौला कायनात क्या करते हैं, मजदूरी करके आते हैं। रोज़ा रखा है, एक रोटी मजदूरी करके आए हैं, एक रोटी का पैसा आया है। चौखट में दस्तक दी है, जो तस्वीरें बनाते हैं वे मेरे उन भाइयों बहनों और बेटियों के लिए मैसेज है। रेड न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर गरीब की बेटी आए उसे तू दुपट्टा नहीं दे सकती तो कम से कम उसे जलील भी ना कर। अगर तू किसी को गरीब के यतीम के बेटे को कपड़ा नहीं दे सकता तो किसी को जलील भी ना कर। मेरे नबी की चौखट पे जब भी कोई यतीम का बच्चा आता था, मोहम्मद सीने लगाते थे तो फरमाते थे, काश कभी मोहम्मद के माँ बाप जिंदा होते तो मैं लोगों को दिखाता कि माँ बाप का दम क्या है। आज जो बच्चा यतीम है उसका बाप नहीं है, तू अपने बच्चों में ऐश कर रहा है। आज रेड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग अफ्तारी करते वक्त स्टेटस लगाते हैं कि मेरे पास ये डिश है, मेरे पास ये डिश पड़ी है। यतीम कभी ना लगाया कर, यतीम का बेटा कभी ये ना सोचे काश कभी मेरा भी बाप जिंदा होता, कभी मेरा भी बाप जिंदा होता तो मेरे भी दस्तरखान पे अफ्तारी पे ये चीज़ होती, ये फ्रूट हमारे पास भी होता। खुदारा यार कोई तो ख्याल करो, गरीब यतीम का बेटा तू अफ्तारी में स्टेटस लगाए बैठा है, वो तड़प तड़प के रो रहा है। मेरे नबी ने तो ये भी फरमाया था कि ऐ सहाबा, यतीम के बच्चों में अगर तेरा बच्चा खेल रहा हो उसे नाम लेके भी ना पुकारना, कहीं उसका दिल ना टूट जाए, काश कभी मेरा भी बाप जिंदा होता तो मेरा भी नाम लेके पुकारता। आज बात यह है, सखावत अहले बैत से सीख। जब हजरत सूरत दाहर में लिखा है, मौला अली एक रोटी की मजदूरी करके आते हैं तो जिब्रील आते हैं कभी मुसाफिर बनकर, कभी आते हैं कैदी बनकर। वो 3 दफा चौखट पे आते हैं तो जिब्रील जाते हैं तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौला कायनात तशरीफ लाते हैं तो हजूर ने फरमाया, अली कैसी सखावत की है तूने और ज़हरा ने कि अल्लाह ने कुरान बना दिया है, अल्लाह ने कुरान बना दिया है। अली जानता है वो मस्कीन, वो यतीम, वो कैदी कौन था? या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता। फरमाया वो जिब्रील था। तेरी सखावत का चर्चा अल्लाह ने अर्शों पे कर रखा है। ये आज हमने क्या देखा है, ज़कात देते नहीं हैं, गरीब को साथ मिलाते नहीं हैं। 2 भाई थे, हारून रशीद बादशाह का ज़माना था। एक भाई को दौलत में बड़ा मान था, एक दरमियाना था, दरमियाना रवी आदमी था। वो हर साल ज़कात देता था। जब ज़कात देता था तो मर गया तो हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में सैर कर रहा है। उसे पूछा, तू तो कोई ऐसा अमल तेरा देखता नहीं था? मगर उसने कहा, हारून रशीद बात ये है कि मैं हर साल जब ज़कात का वक़्त आता था ना, मैं अपने बच्चों को बाद में देता था, यतीमों का ख्याल पहले करता था। अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई है तो मेरे नबी ने फरमाया, जो यतीम के सर पे हाथ रखता है क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे है जैसे ये 2 उंगलियां हैं, वो मोहम्मद के साथ होगा। पता चला ये ज़कात को हल्का ना जानो। फुक़हा तो ये भी फरमाते हैं जो ज़कात जानबूझकर ना दे मकरूज नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं देता तो उसका रोज़ा भी नहीं है, उसकी नमाज भी नहीं है। आज हम गरीबों का ख्याल नहीं करते। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन अमान क्यों ख़त्म हो गया है? हमने गरीबों पे हाथ रखना छोड़ दिया है। अपना बेटा बीमार हो, हॉस्पिटल में उसके ऊपर 2 लाख लग जाए वो लगा लेते हैं, यतीम के ऊपर नहीं लगाते। अल्लाह के हजूर दुआ करता हूँ अल्लाह हमें ज़कात को समझने की और ज़कात देने की लतूफ़ी अता फरमाए। मैं किबला आपसे ये भी एक सवाल अर्ज करना चाहूँगा कि जो लोग ज़कात नहीं देते उनके बारे में शरई तौर पर क्या हुक्म है? उन पर शरई हुक्म ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा जब महशर के मैदान में 120 सफ़े होंगी सारे नबियों की उम्मतों में। उनमें मज़े की बात यह है कि सरकार ने फरमाया 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी और 40 सफ़े दूसरे अंबिया की उम्मतों की होंगी। मगर होगा क्या, जब ज़कात ना देने वाला बुखील बंदा, ज़कात का मुनकर जो सा है, वो जब आता है, मुनकर ही कहेंगे ना जो ज़कात नहीं देता, तो वो जब आएगा तो उसके गले के अंदर एक तोप होगा। वो तोप कैसा होगा? वो सांप अज़हा होगा। वो सांप होगा, उसे मुंह खोल खोल के कहेगा, वो अल्लाह की बारगाह में कहेगा, या अल्लाह मैंने तो अभी हिसाब किताब नहीं करवाया, अभी तो मेरे लिए फैसला नहीं हुआ, मैं जनती हूँ या मैं
दोस्त की हूँ, मगर ए मालिक आज मुझे सदा क्या है, तो उसे आवाज़ दे जाएगी, वो सांप बोल के कहेगा मैं तेरा वही माल हूँ जिसे तू दुनिया में संभाल संभाल के रखता था। ये सहाय सित्ता की हदीस है, ये सहाय सित्ता की हदीस है। आका ने फरमाया फिर वो सांप उसे पुकारेगा, काटने को आएगा, तो वो कहेगा मालिक मौला मुझे माफ़ी मिलती है। अल्लाह फरमाएगा ये सांप जाने और तू जाने। क्यों? ये सांप नहीं है, ये तेरा माल है जिसे तू सीने से हर वक्त लगा के रखता था, इससे प्यार करता था। पता चला ये माल से मोहब्बत ना किया करो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत से प्यार किया करो। यहाँ पे अल्लाह हमें ज़कात समझने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन उसकी नमाज नहीं होगी, उसका रोज़ा नहीं होगा, उसकी तराबी नहीं होगी अगर वो जानबूझकर ज़कात नहीं देता। हाँ, अगर बिलाशुबा ऐसा भी होता है कि जिस तरह भाई जैसा कोई बंदा है, एक दुकान किराए पे है, एक मकान किराए पे है, मगर मकरूज़ है 4, 5, 6, 8 लाख का, तो फिर उसके लिए ज़कात नहीं लगती ना। अगर एक साल गुजर जाए, कर्जा ना हो सर पे, तो फिर ज़कात देगा, फिर वो साहिबे इस्तिताअत में गिना और शुमार किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अल्लामा शायर नजम अल-कादरी साहब, बड़े वाज़ेह तरीके से ज़कात के ऊपर आज इन्होंने गुफ्तगू की है। किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, और जो लोग ज़कात नहीं देते उनके मुतालिक अल्लाह ताला ने क्या क्या सज़ाएँ रोज़े हश्र रखी हुई हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो हम डेली जो टॉपिक लेकर आते हैं वो आप तक पहुँचे, नाज़रीन उन पर अमल करें, और हमारे जो आने वाले मौजूद मेहमान होते हैं ज़्यादा वक्त उनको दिया जाए। जिस तरह से आज आप तक ज़कात की पूरी मुकम्मल तफसील पहुँची है, और यहाँ पर वक्त ख़त्म हो जाता है हमारी आज की ट्रांसमिशन का। अपने और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सूफिया मलिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर, और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। हुस्ने सहर आई, हुस्ने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका जिक्र तू रब का सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोज़ेदारों पर खजाने खोल देता है। सहर को उठने वालों
रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। तो देखना मत भूलिएगा रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं,